Yes. Siddharth, very good. Then Sahil, Mandar, Jay, Rishabnath, Aditya, very good. Pankaj, Kartik, अथर्वा, ऑल यू पीपल आर राइट्स. बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों कि बिफोर द ग्रेट बुक्स और द होली बुक्स we have to write the. It is written in the Gita. So A part is an error part. Now let's move on to the next exercise. That is exercise number 4. Exercise number 4. Exercise number 4. 4. Judge in him prevailed upon the father. Prevailed upon the father, and he sentenced his son to death. No error. Come on. Statement number 4. Judge in him prevailed upon the father. Aditya, Kartik, अथर्वा, स्टेटमेंट नंबर 4 की बात चल रही है. कम ऑन. स्टेटमेंट नंबर 4. स्टेटमेंट नंबर 4. ऋषभनाथ, गुड. आदित्य, वेरी नाइस. आदित्य, गुड. यस, आपकी बात दुरुस्त है माय डियर फ्रेंड्स. इसमें द आना जरूरी है. द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी फादर के अंदर का जो जज है, द प्रोफेशन ऑफ फादर इज अ जज. तो वो जो जज है पर्टिकुलरली द जज इन हिम enforced upon father and he sentenced his son to death. कि मैं जज हूं और फिर जज के सामने सभी समान होते हैं, और अगर मेरा बेटा अगर गिल्टी साबित होता है तो फिर he is worth punishing और punishing. The judge in him, स्टेटमेंट नंबर 4 में ये जो ए पार्ट इज एन एरर पार्ट. द जज ऐसा आना चाहिए. द शुड बी देयर बिफोर जज. द शुड बी देयर बिफोर जज. तो चलो फिर दोस्तों आगे के स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं. कम ऑन. स्टेटमेंट नंबर 5. स्टेटमेंट नंबर 5. Foreign reader will find most of Prasad's poetical works full of the great charm. Full of the great charm. Great is adjective. Full of great charm. So this the should not be there. Should not be there. Look at here. Foreign reader will find most of Prasad's poetical works full of great charm. So D is an error part. Avishkar, good. The should be deleted. Rohan, then Rushabnath, D. This D part is an error part. The should not be there before. Great, good. Sahil, Mandar, Aditya, very good. चलो फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट देखते हैं.
आप अच्छे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हो. वेरी गुड. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द स्टडी. स्टेटमेंट नंबर 6 पढ़ लो पहले. लेट अस रीड द स्टेटमेंट नंबर 6. It is evident from the facts gathered so far that he had in that murder. It is evident from the facts. It is evident from the facts gathered so far that he had in that murder no error. So it is evident from the facts gathered so far that he had he had in that murder. It is evident from the facts. It is evident from the facts gathered so far that he had a hand in that murder case. He had a hand. यानी उस अभी तक के जो फैक्ट्स गैदर हुए हैं उसमें से ये साबित होता है, उसके एविडेंट मिले हैं कि उस मर्डर केस में उसका हाथ है. He had a hand. He had a hand in that murder case. So, C part. Rishabnath, C. He had a hand. Yes, he had a hand in that murder case. Next. Very good. Good. Then, statement number 7 की तरफ बढ़ते हैं. He knows the French. He knows the French and the English languages. He knows the French and English. The is used for French and English already. So this part, the should not be there. He knows the French and English languages. No error. C part. And English. Very good. So this C part is an error part, Sahil. Then Mandar, Mahajan, Rushabnath. Very good. Sahil. Then Himanshu. Good. All you people are on right track. बच्चों अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं. दैट इज स्टेटमेंट नंबर 8. स्टेटमेंट नंबर 8 देखिए. 8. A 2 miles walk. A 2 miles walk. Daily, early
in the morning is very conductive. Conductive here, conducive or helpful to health. A 2 mile walk, a 2 mile walk, a 2 mile walk. It is a unit. A 2 mile walk. It is a unit. It is used in a unit only, a whole. So mile should not be there. There should be only a mile. Yes, very good. It has become a compound word like 2 mile. It is a 2 mile walk daily early in the morning is very conductive, conducive or helpful to health. Very good. So Avishkar, Siddharth, Himanshu, Avishkar, Mandar, A is an error part. Sahil, very good. Now come to the next statement, that is everything. Read this. Everything depends on them having. Them having थोड़ा confusing है. Everything, everything depends on them. Everything depends on them having the courage of their convictions. B part is an error part. Depends on their having the courage. Depends on their having the courage. There should be there instead of them. Everything depends on their having the courage of their of their convictions. No error. So B part is an error part. There should be there. Very good. And then last statement देखते हैं, dear friends. First you read the last statement. Last statement देख लीजिए. It has been our custom, रीति और रिवाज, custom, since times immemorial. Since time immemorial यानी old time से या अति प्राचीन काल से. Since time immemorial, immemorial, since time immemorial. So it has been our custom since times immemorial extend hospitality to those who come to our door. इसमें it has been our custom since time immemorial. Since time immemorial. Since time immemorial. Since time immemorial. No times. Time immemorial. Extend hospitality to those who come to our door. So B part is an error part. Instead of times, there should be only time. So it has been our custom since time immemorial extend hospitality to those who come to our door. So only time. Himanshu, Avishkar, Sahil, Mandar, Avishkar, very good. Sahil, all you people are right. Aditya also, good, good, very good. Now dear friends, अब हम हमारा पसंदीदा प्रोग्राम जिसको हम डाउट के नाम से पुकारते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं. तो आज के विषय में and today's topic, if you have any query or doubt, please you ask.
doubt session, please. First of all, before asking the doubts or question, you have to state or express the statement number. Okay. Statement number 8 and 9. Siddharth, come on, guys. We'll go to statement number 8 and 9. 8 और 9 की तरफ बढ़ते हैं. स्टेटमेंट नंबर 8 और 9 वो क्या कहते हैं, पहले रीड करो. 2 miles walk, 2 miles walk daily early in the morning is very conductive or helpful to health. No error. Please, one by one, please, one by one. Dear friends, all you people, I'm talking to you all. Though the question is asked by one student, but I'm talking to you all. Now यहाँ पे जो 2 miles walk है, तो ये 2 mile walk होना चाहिए. There should be only mile. And accept the change, dear friends. Accept the change. So a 2 mile walk should be there. And remember this for all the time. Practice will make you perfect. Practice is important. A 2 mile walk, a 3 mile walk, a 4 mile walk. In this way, you have to learn in that sense. A 2 mile walk. So in it, a part is an error part. Now let's take the next. That is, he wanted to know about everything depends. Everything depends on their having the courage of their convictions. Convictions means अपना दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास है. तो हर चीज जो है उनके पास जो करेज है, उसका विश्वास उसके ऊपर निर्भर करता है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर हैविंग द करेज ऑफ देयर convictions. So instead of them, there should be there. There should be there. How there is everything in statement 9. There, just a moment, dear friend. There might be only everything. How there is everything. आपकी बात दुरुस्त है मंदार. हाँ, ये ऐसी हालत में हमें कुछ जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वही यहाँ कहीं तो भी प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी. ये थोड़ा इसको एस को प्रिंट भी किया गया है. तो एवरीथिंग डिपेंड्स, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए. प्रिंट मिस्टेक की वजह से यहाँ यस दिख रहा है. लेकिन ओपनली मिस्टेक यहाँ पे आती है कि देयर होना जरूरी है. ओके, आपकी जो डाउट है वो सही है बेटा. वेरी गुड. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और लॉजिकली कुछ हमें करना पड़ेगा डियर फ्रेंड. तो ये समझे वाली बात है. यहाँ हमारी समझदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उनके ध्यान में आएगा जिन्होंने पेपर सेट किए हैं कि भाई हमारी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो ये मिस्टेक को एक्सेप्ट करके बच्चों ने सही आंसर लिखा है, अगर ये उनके समझ में आएगा तो फिर वो हमारी जो समझदारी है उसकी जरूर तारीफ करेंगे बेटा. और इसका हमें कहीं ना कहीं प्लस में फायदा हो ही जाएगा. वेरी गुड. ऑन टू द पीपल हु हैव सेट द क्वेश्चन. वेरी गुड. ओके, थैंक यू. और सर 7 प्लीज. साहिल. ठीक है बेटा, 7 का देखते हैं हम लोग. 7 का देखते हैं, नो प्रॉब्लम. मंदार, बहुत अच्छी बात है. साहिल 7 पर आते हैं. रीड द स्टेटमेंट प्लीज. Read the statement. 7th one. It is evident. 7th one, sorry. He knows the French and English. So this the stands for French and English. He knows the French and English languages. No error. तो यहाँ पे हमने ध्यान देना पड़ेगा. साहिल, यहाँ पे क्या किया है कि 2 लैंग्वेजेस रेफर की गई है, फ्रेंच एंड इंग्लिश. And both languages are connected by the and they are joined by the and. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि when 2 languages are joined by and और वो एक के बाद आती है, तो फिर फर्स्ट लैंग्वेज के पहले द इस्तेमाल है और सेकंड लैंग्वेज के पहले द की जरूरत नहीं है.
but as far as the names of the languages are concerned, as far as the names of the languages are concerned, this French and English are the names of languages. या लैंग्वेज पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया है. ओके, द फ्रेंच. तो फिर द का जो ओवर रिपीटेशन है उसको टाल दिया उन्होंने. द ओवर रिपीटेशन ऑफ द और द डेफिनेट आर्टिकल इज अवॉइडेड. सो सी पार्ट में द की जरूरत नहीं है ऐसा उनको लगता है. द शुड नॉट बी देयर. सो सी पार्ट इज एन एरर पार्ट बेटा. साहिब ध्यान देना है इसके ऊपर भी. यानी बहुत से ट्रिकी सेंटेंस तो होता एक ही है, लेकिन एक्चुअली हमने इसके पहले भी देखा कि पैराग्राफ्स है, फिर पैराग्राफ्स को स्प्लिट कर रहे हैं, फिर सेंटेंस है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और फिर पर्टिकुलर वन सेंटेंस लेके उसको स्प्लिट करके कौन सा पार्ट उसमें रॉन्ग है वो भी पूछ रहे हैं. तो इट इज वेरी important for us to be very particular in learning the language or in learning the grammar of a language as far as English is concerned. और आपको मालूम है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. डे बाय डे देयर इज द इंक्रीमेंट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. और फिर भाषा का एक नेचर होता है कि हमेशा से वो डेवलप होती रहती है. जैसे जैसे आगे ये जो ग्रामरियन लोग है, ग्रामरियन दैट मीन्स द पीपल हु स्टडीज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, तो उसमें कुछ और सुझाव देंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस बनेंगे. तो हमारा इंग्लिश ग्रामर अप टू डेट होना जरूरी है. यहाँ मैं आपको विनती करना चाहूँगा कि भाई जो अपना इंडिया के क्लास शुरू हो जाएंगे प्रिपरेशन के, तो उसमें इंग्लिश बहुत डिटेल में चलेंगे. आपका लैंग्वेज भी डेवलप होगा, आपका ग्रामर भी डेवलप होगा, और आपका जो भविष्य है, आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, वो हासिल करने में आपको जरूर मदद मिलेगी. आपके पास का जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो वेस्ट मत करना. वो अगले समय में यानी अगले कोर्स में अपन डाल देंगे. तो अभी तो टाइम लिमिटेशंस थे. सो ऑल माय पीपल, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए. फिर मंदार का कहना है, मंदार माय डियर फ्रेंड, स्टेटमेंट नंबर 5 कोई बात नहीं है. स्टेटमेंट नंबर 5 की ओर चलते हैं. रीड द स्टेटमेंट नंबर 5. फॉरेन रीडर्स विल मोस्ट foreign readers foreign reader will find most of Prasad's poetical works full of the great charm, full of great works, great poetical works, full of great charm, full of great charm, full of great charm. अगर ग्रेटेस्ट रहेगा तो उसके पहले द आएगा. द शुड नॉट बी देयर and D part. The should not be there. Mandar, the should not be there before this great. The great charm. It should be only poetical works full of great charm. Okay. Next. अगर आपको और किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Come on, guys. In part B, a foreign reader will find most of Prasad's foreign readers will find most of Prasad's poetical works full of the great charm. The should not be there. जब कंपैरेटिव की बात, जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो मोस्ट के पहले द आएगा. यस, व्हेन सुपरलेटिव डिग्री होगा कंपैरेटिव में, when degree forms when there is the degree or comparison, and in comparison superlative degree form most आता है, तो फिर उसके पहले द आएगा. नेक्स्ट. हाँ, देयर यस, ऐसा तो आपको लगता है कि फॉरेन रीडर विल फाइंड द मोस्ट ऑफ प्रसाद. इसको कट कर दिया. ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कंपैरेटिव में नहीं है. कंपैरेटिव डिग्री रहा तो फिर इस सुपरलेटिव के पहले द आएगा.
और इसीलिए शायद उन्होंने द यहाँ पे नहीं दिया है और इसको रॉन्ग नहीं कहा है। तो ये जो चेंज है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तो ऐसा लगता है कि द शुड बी देयर बिफोर मोस्ट, लेकिन यहाँ पे द इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब क्या कि ये कंपैरेटिव या कंपेयर नहीं किया गया है। अगर कंपेयर किया गया तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म मोस्ट के पहले द आएगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कंपेयर नहीं किया है और इसीलिए शायद मोस्ट के पहले द नहीं दिया, अदरवाइज द वहां होना चाहिए था। ओके बेटा, ओके। लेकिन ये जो छोटे छोटे चेंजेस है उसके ऊपर ध्यान दो, वेरी पर्टिकुलर स्टडी। अगर यहाँ ए ऐसा है तो वहां फिर वो कैसा क्या होगा, ये ऐसा है तो वो ऐसा कैसा होगा। तो ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जितना कंफ्यूजन बढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। और ग्रामेरियन लोग एक नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ग्रामेरियंस। तो उन लोगों में भी कभी कभी कुछ चीजों पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो वो हमें समझ लेना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, थैंक यू मंदार। तो क्या आज के लिए रुकते हैं बच्चों? अगर और किसी को पूछना है तो हाँ सर, कैन एक्सप्लेन रूल नंबर 11। ठीक है, अपन रूल नंबर 11 को देखते हैं। रूल नंबर 11 को देखते हैं प्लीज। रूल नंबर 11 क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो सीधा रूल नंबर की तरफ ही बढ़ते हैं। हाँ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी आई, वी, ही, हिम, ये सब प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव बोले तो उनके आगे एस सी एल एफ लगता है, कि जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, योर सेल्फ, देन हर सेल्फ, इट सेल्फ, यस, देन देम सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव है। सो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन cannot alone be the subject of a verb। यानी ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है। he himself saw her do this। लेकिन अगर हम ये ही कट कर देते हैं तो himself ये अकेला सब्जेक्ट नहीं होगा। he himself अकेला सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके पहले प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म आएगा। ओके, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन विल बी देयर और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। यानी इस तरह से कि ये हिमसेल्फ सॉ हर डू दिस, हिमसेल्फ सॉ हर डू दिस ऐसा कभी नहीं आएगा, इसके पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जांपल, ही हिमसेल्फ सॉ हर डू दिस, इस तरह से। हाँ साहिल, ये 3 रूल है, ये एक बार पढ़ लो लगे तो आप, और फिर 1 से लेकर 9 तक अपन देख लेंगे अपने पास। और हाँ, यस, वी हैव 7 मिनट्स इन आवर हैंड। उसमें अगर आपको और कुछ रूल देखना है तो ये पढ़ लीजिए आप। यस, साहिल 10, 11 एंड 12 देख लिए। अब हम इसके पहले के रूल देखते हैं। वेरी गुड। हाँ, 1 to 9 पढ़ लीजिए, फिर मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगा। आई विल स्क्रॉल द पेज डाउनवर्ड। ओके मंदार, ओके। नहीं, अपना श्री हरि पाटिल जो है वो सभी रूल देखना चाहता है। कोई नहीं पाटिल, देख लो बेटा।
और ये अप टू 1 to 9 होने के बाद मैं नीचे और पेज को स्क्रॉल करूंगा. डोंट वरी, वी हैव टाइम. यस, वी हैव 5 to 6 minutes in our hand. सर, रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में एक मिनट. हाँ, रूल नंबर 2 देखो. सिद्धार्थ, when two or more singular nouns are joined, when two or more singular nouns are joined by either or, neither nor और जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है तो फिर प्रोनाउन इज सिंगुलर. प्रोनाउन इज सिंगुलर. अब यहाँ देखेंगे आइदर और से विमला एंड सीता, ये दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ा है. विमला इज वन एंड सीता इज वन. These two singular nouns are joined by either or. तो फिर जो प्रोनाउन होगा तो फिर वो हर यानी सिंगुलर, देयर नहीं है, हर है. उनका प्लूरल क्या होगा? देयर. विमला एंड सीता बोले तो फिर उनका प्लूरल प्रोनाउन होगा देयर, लेकिन प्लूरल नहीं है. कौन सा इस्तेमाल किया है? सिंगुलर. वेरी गुड. ऋषिकेश सर. यस सर. वेदांतला अनम्यूट करा. वेदांतला अनम्यूट करा प्लीज. त्याच्या माईक वर क्लिक करा सर तुम्ही, तो अनम्यूट होऊन जाईल. ते मला कोणतं ओपन करावं लागेल? पार्टिसिपेंट चार्ट मध्ये तर गेलोय मी, पण चार्ट स्टेटमेंट 9. ठीक आहे. स्टेटमेंट 9. एवरीथिंग. हाँ सर, उधर एवरीथिंग्स की जगह एवरीथिंग चाहिए था ना. हाँ, उसके ऊपर अपनी बात हो चुकी है. तो ये जो है ये एवरीथिंग होना चाहिए. हाँ. ये एवरीथिंग होना चाहिए. हो सकता है उसकी प्रिंट मिस्टेक हो गई हो, या क्योंकि इंग्लिश के ऊपर इतना पर्टिकुलरली इतना इतना वास्ट स्टडी है और वास्ट मटेरियल होने के वजह से, मटेरियल यानी ये जो कुछ भी सब्जेक्ट मैटर ज्यादा होने की वजह से कभी कभी बाय मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन वहाँ एवरीथिंग होना चाहिए. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन. और थोड़ा सा यस उन्होंने सेंड भी किया है, लेकिन यहाँ एवरीथिंग होना चाहिए बेटा. और ऑब्वियस मिस्टेक उन्होंने यहाँ पे दिया है देम. तो इंस्टेड ऑफ दिस देम देयर शुड बी देयर. THEIR देयर. आपकी बात दुरुस्त है वेदांत. क्या एवरीथिंग होना चाहिए? एवरीथिंग होना चाहिए, यस नहीं चाहिए. अगर यहाँ यस लगता है तो फिर इसको यस नहीं चाहिए, डिपेंड होना चाहिए. तो यहाँ उनका प्रॉब्लम है. शायद उनकी कुछ गलती हो गई, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया है, ABCD पार्ट में नहीं दिया, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे. ये किसको दिया है? डिपेंड्स को दिया है. तो ऐसी चीज में हमें ध्यान देना पड़ेगा. अगर जब उन लोगों को पता चलेगा जिन्होंने पेपर सेट किया है या जिन्होंने लिखा है कि भाई अपनी यहाँ गलती हो गई थी, लेकिन ये बच्चे ने समझदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो जरूर हमारा उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. हाँ, रूल नंबर 8 श्री हरि. ओके, थैंक यू सर. वेलकम बेटा, वेलकम. रूल नंबर 8.
श्री हरि, ओके, अभी अपने पास 1 मिनट बाकी है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 प्लीज। रूल नंबर 8,